Today we will discuss what is limit of a sequence. Before explaining to you what is limit of a sequence, consider the sequence an whose nth term is given by 3n plus 1 upon n. I'm going to ask you to do few calculations to evaluate few terms. Write down what I'm telling you to do. You have to consider this sequence an whose nth term is given by 3n plus 1 upon n. Then you have to compute its first 5 terms. First 5 terms compute karo sequence की first, second, third, fourth, fifth. Then compute its 10th term, 20th term, 30th term. Is it clear what you have to do? Yes, ma'am. Calculate करो. All of you have to compute the first 5 terms of the sequence, then the 10th term, 20th term, and the 30th term of the sequence. Where the sequence is an is equal to 3n plus 1 upon n. सबने find out करी terms sequence की? Yes, ma'am. Yes, What ma'am. is the first term that you are getting? The first term is obtained by putting n is equal to 1 over here. So when you put n is equal to 1, you will get 3 into 1 plus 1 upon 1, which is 4. The second term is given by putting n is equal to 2. It will be 3 into 2 plus 1 upon 2, which is 7 by 2. I have computed the terms in decimal form and rounded them till 2 places. 7 by 2 को अगर हम decimal में लिखेंगे, it will be 3.5. Third term will be given by 3 into 3 plus 1 upon 3, which is 10 by 3. In decimal form, it is 3.33. Fourth term will be given by 3 into 4 plus 1 by 4, which is 16 by 5, 13 by 4. 3 4 is 12 plus 1, 13 upon 4. In decimal form, it will be 3.25. Fifth term will be given by 3 into 5 plus 1 upon 5, which is 16 by 5, which is 3.2. 10th term will be 31 by 10, which is 3.1. 20th term will be 61 upon 20, which gives rise to 3.05. What will be the 30th term in decimal form? Till 2 places. 30th term, value of 30th term. 91 by 30. 91. In decimal form, it will be
3.03. Yes or no? Yes ma'am, 3.03. Now 100th टर्म की जो वैल्यू होगी डेसिमल में वो बताओ मुझे 100th टर्म की. 301 by 100. Yes, ma'am. Which will be 3.01. And if you find out the 1000th term, the value of 1000th term in decimal form, it will be 3.001. Now observe the values that you are getting. First value is 4, then it's 3.5, then it's 3.33, 3.25. Values क्या हो रही हैं? धीरे It's धीरे going कम हो closer रही to 3. More हैं. real. They are going closer to which number? 3. 3. अगर आपने 1000 टर्म्स की वैल्यू देखी होगी दैट इज 3.001. वो तो 3 के बहुत ही क्लोज है. अब अगर 3000 के बाद में जितनी 1000 टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स होगी सीक्वेंस की 1001th term, 1002th term and so on, they will be very close to 3. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Still ये टर्म्स भी क्लोज हैं बट वो टर्म्स तो बहुत क्लोज हैं. तो आई कैन से स्टार्टिंग की 1000 टर्म्स को छोड़ के 999 टर्म तक छोड़ के 1000 से लेके बाकी सारी टर्म्स क्या है 3 के बहुत ही क्लोज हैं. तो अगर हम जब भी हम सीक्वेंस का बिहेवियर देखते हैं तो ज्यादातर टर्म्स किस नंबर के क्लोज है हम ये देखना चाहते हैं. तो अब हमने क्या देखा इस सीक्वेंस के लिए ज्यादातर टर्म स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो है वो किसके क्लोज है 3 के. So I can say that this sequence is approaching a number 3 and that number 3 is said to be the limit of the sequence. Whatever I have just said, is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट मैंने क्या किया अगर वो सारी टर्म 3 के क्लोज है तो अगर मैं उस टर्म वैल्यू का 3 के साथ डिफरेंस दूंगी दैट शुड बी क्लोज टू 0. तो मैंने यही किया हर टर्म में से 3 को माइनस किया एंड देन देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो किसको अप्रोच कर रहा है 0 को. इसका मतलब लॉन्ग टर्म बिहेवियर में ये जो सीक्वेंस है वो 3 को अप्रोच कर रहा है. Here we can observe as value of n increases, the difference between value of term an and L. L जो हमने नंबर लिया 3 यहाँ पे जो लिमिट है L is the limit. In this case the limit is 3 becomes very small. अब small बन जाएगा तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं. अब रिलेट करना जो मैं बोलूंगी जो भी हमने ऑब्जर्व किया है इस सीक्वेंस के लिए और जो इस डेफिनेशन में लिखा है रिलेट करना है. A number L is said to be limit of the sequence an if for any epsilon. जैसे डेल्टा होता है ऐसे एक epsilon होता है. Epsilon is a very small positive number. You can take epsilon to be 0.001 or you can take epsilon to be 10 raised to the power -5. कुछ भी ले सकते हो. 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है और पॉजिटिव होता है. Then there exists a positive integer capital N that depends on this epsilon. हमने जो भी epsilon की वैल्यू चूज की उस पर डिपेंड करता हुआ हम एक इंटीजर निकालते हैं n. जैसे मैंने इस केस के लिए आपको 1000 बताया था तो मैंने क्या देखा कैपिटल N मैंने 1000 ले लिया तो 1000 टर्म तक जो है वो 3 की कम क्लोज है. बट 1000 के बाद जो भी टर्म वैल्यू होगी उन सब के लिए जो सीक्वेंस की टर्म वैल्यू है और जो हमने लिमिट ली है 3 उन दोनों का डिफरेंस वो क्या होगा एप्सिलॉन से कम होगा. और जब हम डिफरेंस की बात करें तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं. तो व्हाट इज रिटन ओवर हियर? A number L is said to be limit of the sequence if for any epsilon there exists a positive integer capital N depending on epsilon such that mod of an minus L. जो टर्म वैल्यू है और जो आपने लिमिट ली है उनके डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन. किस के लिए? उस n से कैपिटल N जो हमने फिक्स किया उससे जो भी n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यूज बड़ी होंगी उन सब के लिए रिजल्ट होना चाहिए. एंड देन L is said to be limit of the sequence. हम उसको लिखते कैसे हैं? लिमिट ऑफ an n tending to infinity is equal to L. इसका मतलब क्या? जैसे जैसे n बहुत बड़ा होता जाएगा an की जो वैल्यूज हैं वो किसको अप्रोच करेंगी? L को. अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. एग्जिस्ट करने का मतलब है जहाँ पे वो फाइनाइट नंबर हो. इनफाइनाइट नंबर नहीं, फाइनाइट नंबर. Then the sequence is said to be convergent, otherwise it is said to be divergent.
कन्वर्ज करिए ना किसी नंबर के क्लोज जा रही है, इसलिए हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। अगर वो लिमिट फाइनाइट नहीं है या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, यूनिक लिमिट नहीं है, तो हम उसको कहेंगे डाइवर्ज। What is limit of a sequence? Is that clear to everyone? Yes, मैम ma'am. थोड़ा बहुत ही आया, पूरा क्लियर नहीं हुआ। क्या समझ नहीं आया? ये डेफिनेशन थोड़ा समझ नहीं आया। मैम हाँ जी एप्सिलॉन मैम। का समझ नहीं आया मैम, एप्सिलॉन कहाँ यूज होता है? अच्छा, आपको ये जो नीचे मैंने आपको सीक्वेंस दिया था, इसके लिए सब कुछ समझ आया? यस मैम। यस मैम, ये आ गया था। अब देखो, अब मान लो एप्सिलॉन कैसे है। आप सपोज करो जो आपको डिफरेंस चाहिए टर्म्स की सीक्वेंस की जो टर्म्स है ए एन और जो आपकी लिमिट एल है, सीक्वेंस आप यही लेके चलिए 3n + 1/n और लिमिट आपकी इसकी क्या है 3। अब मैं क्या चाहती हूँ, उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो। एप्सिलॉन आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो तो आपने लिया 0.01। अगर आप 0.01 लेते हो तो आपने 100 टर्म की वैल्यू क्या निकाली थी? 3.01। यस और नो? यस मैम। उसका डिफरेंस 3 के साथ कितना होगा? मैम 0.01। 0.01। तो उसके बाद वाली जो भी टर्म्स है 101, 102, उन सब का डिफरेंस एल के साथ जब मैं लूंगी वो क्या होगा? 0.01 से कम होगा वो भी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरा एप्सिलॉन 0.01 है तो ये जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो मैं क्या ले सकती हूँ? 100। क्योंकि 100 के बाद जितनी भी टर्म्स है 101, 102, उनके लिए जो सीक्वेंस की वैल्यू है और एल जो हमने 3 लिया है वो क्या होगा? 0.01 से कम। अब अगर मैं एप्सिलॉन को ले लेती हूँ 10⁻⁻², दैट मीन्स 0.001, उस केस में एन क्या होगा? उस केस में एन आपका इस सीक्वेंस के लिए होगा 1000। यस और नो? क्योंकि 1000 के लिए आपको क्या मिल रही थी टर्म की वैल्यू? 3.001। उसका जो मैं डिफरेंस ले लूँ 3 से वो क्या होगा? 0.001। अगर मैं उससे कम नंबर 100 ही लूंगी तो 100 के लिए डिफरेंस देखो 0.01 मिल रहा है, वो क्या 0.001 से छोटा है? नहीं ना। तो हम जो भी नो मैम। एप्सिलॉन हम चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता हुआ हम एन की वैल्यू लेंगे, ताकि उसके बड़ी जो भी वैल्यूज लेगा स्मॉल एन, उसके लिए हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करे। इफ आई टेकन माई एप्सिलॉन टू बी 0.1, तो हो सकता है जो 10 के लिए आपने कंप्यूट किया था कैपिटल एन को आप 10 ही ले सकते हो, कैपिटल एन को, अगर आप एप्सिलॉन को 0.1 लेते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर एप्सिलॉन यू विल फाइंड आउट कैपिटल एन such that this result holds। एक्चुअली इस टॉपिक जो सीक्वेंस वाला टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन सीरीज के लिए हैं, बट सीरीज को समझने के लिए आपको सीक्वेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू। मैम इस वाली सीरीज में तो मैम n1 ही हो जाएगा, क्योंकि n के बाद तो सारी छोटी है उससे। मैम अगर ये जो नीचे वाली सीरीज है उसमें हम एप्सिलॉन 1 ले लें तो मैम बाकी के जो n है वो भी तो एप्सिलॉन 1 नहीं 1। लेंगे, जीरो के करीब बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर, तो 1 और 0 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एप्सिलॉन नॉर्मली हम 0 के बहुत ही क्लोज लेंगे, तो क्लोज नंबर जैसे कि क्या होंगे? 0.0001, 10⁻⁻10, 10⁻⁻5, ऐसे होंगे वो नंबर। यस और नो? ऐसे तो एप्सिलॉन को 5 ले लूं, 5 के लिए तो सीक्वेंस की हर टर्म ट्रू हो रही होगी। यस और नो? यस मैम। तो हम एप्सिलॉन जो है दैट इज अ वेरी स्मॉल, एप्सिलॉन नॉर्मली नंबर ही होता है, बहुत छोटा नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। नाउ इज दिस लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। So for this sequence 3n + 1/n, limit n tending to infinity is coming out to be 3, because as n tends to become very very large, the value of the sequence are approaching 3, so its limit will be 3. और ये ऐसे नंबर है फाइनाइट, so we say that the sequence is converging sequence and its limit is 3. आप इसकी लिमिट डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हो। कैसे? 3n + 1/n है, n को आपने सेपरेट करके लिखा है टर्म बाय टर्म।
3x, चाहे आप कोई पहले वाली टर्म देखो 3, चाहे आप कोई भी वैल्यू लो, फर्स्ट टर्म लो, सेकंड टर्म लो, 100 लो, ये 3 तो 3 रहेगा, तो लिमिट ऑफ 3 विल बी 3 ओनली। नेक्स्ट क्या है 1/n, जब आप n को 1 लोगे इट विल बी 1, n को 2 लोगे इट विल बी हाफ, then 1/3, 1/4, 1000 लोगे 1/1000, 1 लाख लोगे 10⁻⁵। तो आप देखो कि जैसे जैसे आप n को इंफिनिटी कर रहे हो 1/n किसके क्लोज जा रहा है, 0 के क्लोज, तो लिमिट विल बी 3 + 0 विच इज 3। आप ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हो। अभी जो मैंने ऊपर किया वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। Now consider this sequence an is equal to n square. इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, जब हम n को 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म 2 स्क्वायर, थर्ड 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। 10th टर्म विल बी 10 स्क्वायर, 100th टर्म विल बी 100 स्क्वायर, 1000 टर्म विल बी 1000 स्क्वायर। अब अगर सबकी वैल्यूज कंप्यूट करते हो, 1 स्क्वायर विल 1, सेकंड टर्म विल बी 4, थर्ड टर्म विल बी 9, 10th टर्म विल बी 100, 100th टर्म विल बी 10,000 and 1000th term is 10⁻⁶। आप क्या देखो जैसे जैसे वैल्यू n की बढ़ रही है, जो आपकी सीक्वेंस है उसकी जो टर्म की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। yes or no? Here we can Yes. observe that as value of n increases, the value of term an also increases। वो किसी नंबर के क्लोज नहीं जा रही, वो और बढ़ती जा रही है। तो we say that our sequence is not converging to a finite number, therefore it is a divergent sequence। अगर आप कुछ टर्म्स को छोड़ के ज्यादातर टर्म्स भी देखोगे तो वो भी किसी फाइनाइट नंबर के क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा है, डाइवर्जेंट है। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. नाउ थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई सीक्वेंस है उसकी 2 लिमिट हो, मतलब एक ही साथ वो 2 नंबर से क्लोज जा रहा हो। अगर ऐसा है तो उस सीक्वेंस को हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन कंसिडर अ सीक्वेंस, राइट इट डाउन, आई हैव नॉट एक्सप्लेन दैट ओवर हियर, आप खुद करिए वो। राइट डाउन अ सीक्वेंस whose nth term an is equal to -1 raised to the power n। लिखा सबने? Yes, ma'am. नाउ अब इस सीक्वेंस के टर्म्स कंप्यूट करो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। मैम एक बार सीक्वेंस रिपीट कर देना प्लीज। सीक्वेंस मैम एक बार an रिपीट is करना। हाँ, सीक्वेंस an is equal to -1 raised to the power n। The sequence is an is equal to -1 की पावर n। इस सीक्वेंस के लिए आप कुछ टर्म्स कंप्यूट करो, फर्स्ट, सेकंड, Ma'am. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। Ma'am, -1, -1, -1, -1. 1 -1. गुड। तो आपने क्या देखा, जो भी अगर आप n की ऑड वैल्यूज ले रहे हो तो नंबर क्या होगा, -1, इवन वैल्यू ले रहे हो तो 1। तो आप देखोगे इसमें मतलब अगर जहां तक भी आप सीक्वेंस, तो हमारा इनफाइनाइट तक चलेगा, इनफाइनाइट वैल्यूज लेगा, है ना। मतलब जो n की वैल्यू है वो तो इनफाइनाइट हो गया, नेचुरल नंबर है। तो ज्यादातर टर्म्स जो है, कुछ टर्म्स है -1 के क्लोज, कुछ क्या है 1 के क्लोज, और किसी के क्लोज नहीं है। तो ये सीक्वेंस 2 नंबर्स को कन्वर्ट कर रहा है, -1 एंड 1। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेचुरल नंबर्स तो लेता है ना हमारे स्मॉल एन। अब आपको पता है नेचुरल नंबर या तो इवन होगा, ऑड होगा। अगर ऑड वैल्यूज ले रहे हैं तो आपको पता है आपका सीक्वेंस -1 जा रहा है, और अगर इवन ले रहा है तो वो 1 जा रहा है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस 2 नंबर्स को के क्लोज है, 1 और -1, क्योंकि इसकी ज्यादातर टर्म्स क्या है, -1 के क्लोज है, और कुछ ज्यादातर टर्म्स 1 के क्लोज है। तो इस टाइप के सीक्वेंस को, जहाँ पे लिमिट यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो उसको कैसा सीक्वेंस कहते हैं, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। मेंशन नहीं है बुक में भी, यहाँ पे भी मैंने मेंशन नहीं किया, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, ऑस्किलेट कर रहा है ना 2 वैल्यूज के बीच में, -1 1, -1 1, ठीक है। और वो भी डाइवर्जेंट का ही पार्ट आ जाता है, कन्वर्जेंट नहीं कहते उस सीक्वेंस। अगर हम किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कह रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसकी लिमिट यूनिक होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now there are 2 sequences an and bn such that limit of an is a and limit of bn is b। Then जो sequence मिलेगा corresponding terms को add करके an plus bn,
ये सीक्वेंस कैसा होगा जिसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म AC प्लस BB, तो वो लिमिट क्या होगी सीक्वेंस की A प्लस B। अगर आप डिफरेंस लोगे तो लिमिट का भी क्या हो जाएगा डिफरेंस। अगर टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा उसकी जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी ओरिजिनल सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करके मिलेगी। ओके Yes, ma'am. यस तो नो क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। ओके नेक्स्ट कंसिडर, जब हमें अगर डिवाइड करना हो, डिवाइड कब कर सकते हैं जब वो जो भी आपका डिवाइजर होगा वो कैसा हो नॉन जीरो नंबर हो। तो हमने क्या किया एक सीक्वेंस लिया an सच दैट इट्स लिमिट इज a, हमने एक सीक्वेंस लिया bn सच दैट जो bn है किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए bn की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब वो नॉन जीरो टर्म वाला सीक्वेंस है और उसकी लिमिट क्या है b, वो भी नॉन जीरो है। देन लिमिट ऑफ 1 बाई bn, जो bn का रेसिप्रोकल करके सीक्वेंस होगा, ये सारी टर्म्स डिफाइन होंगी क्योंकि bn नॉन जीरो है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी 1 बाई b एंड लिमिट ऑफ an अपॉन bn दैट विल बी a बाई b। इस सीक्वेंस की लिमिट जो an बाई bn से रिजल्ट करेगा उसकी लिमिट होगी a बाई कैपिटल A अपॉन b। इज दिस क्लियर? सिंपल है, सब्ट्रैक्शन वगैरह Yes, जो ma'am. नॉर्मली Yes, मैथमेटिकल है ma'am. वही चीज लिखी है। नाउ व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस? अगर हमारा जो भी सीक्वेंस है an उसकी हर एक टर्म एक फिक्स नंबर, एक जो कांस्टेंट है उससे कम है, तो हम कहते हैं हमारा सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, मतलब हमने उसके ऊपर एक अपर लगा दिया है, अपर बाउंड लगा दिया है। हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी है जिससे उसकी वैल्यूज क्या होंगी, इस सीक्वेंस की सारी वैल्यूज कम होगी। आप एक सीक्वेंस लिखिए 1 बाई n, सीक्वेंस लिखिए 1 बाई n, इसकी टर्म्स कंप्यूट करो, क्या होगी 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4। तो आप इसके ऊपर अपर बाउंड कौन सा लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो क्योंकि इसकी सारी टर्म्स क्या होंगी या तो 1 के इक्वल या उससे छोटी, या 2 लगा सकते हो या 3 लगा सकते हो। ठीक है, if an is less than equal to m for all values of n natural number में where m is the constant, then we say sequence is bounded above and m is called upper bound of the sequence an। 1 by n के लिए अपर बाउंड कौन कौन से होंगे 1, 2, 3, 4 so on। सिमिलरली अगर हमारे सीक्वेंस की टर्म किसी नंबर से बड़ी है या उसके बराबर है, जहाँ पे वो नंबर m हमारा एक कांस्टेंट है, देन वी से सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। 1 बाई n के लिए बाउंड लोअर बाउंड क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी सारी टर्म से बड़ी होगी 1 बाई n के लिए? 1 बाई n जो सीक्वेंस होगा उसकी सारी टर्म्स क्या होंगी पॉजिटिव हैं, तो कोई भी नेगेटिव नंबर ले नहीं सकते आप m को। If you take m to be -1, तो 1 by n हमेशा क्या होगा -1 से बड़ा होगा, तो 1 by n के लिए आपका जो लोअर बाउंड है वो क्या हो जाएंगे -1, -2, माइनस एंड सो ऑन, 0 भी होगा। तो व्हाट इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस? इफ Ma'am? an is greater than equal to m, yes, इसमें लोअर बाउंड 1 नहीं ले सकते अगर, क्योंकि इक्वल का साइन भी 1 तो by है। n के लिए, हाँ 1 by n के लिए क्यों? Yes, आपकी ma'am. जो सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी हाफ होगी, हाफ हमारी 1 से बड़ी है, अच्छा छोटे है ना, ऊपर वाले के लिए ले सकते हैं 1 अपर बाउंड के लिए, लोअर बाउंड के लिए ऐसा नंबर जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स बड़ी हो या इक्वल हो। ओके है ना, अगर आप हाफ या 1/3, 1/4 लोगे वो सब तो हमारे 1 से बड़े नहीं है ना, 1 से छोटे हैं ना। यस मैम। तो या तो आपको लेना तो आप ले सकते हो 0 ले सकते हो, क्योंकि वो 0 के क्लोज जाएगा तो कभी भी 0 को अप्रोच नहीं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेगा, वो अप्रोच करेगा। नेगेटिव नंबर्स ले सकते हो। So if for a sequence an, each of its term is greater than or equal to m, where m is a constant, then we say sequence is bounded below, and small m is called lower bound of the sequence। और बाउंडेड सीक्वेंस कब होगा? जब वो दोनों हो, बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, मतलब दो कॉन्स्टेंट्स होंगे स्मॉल m एंड कैपिटल M,
सच दैट जो हमारी जो टर्म होंगी ए एन की वो उससे छोटी हो कैपिटल एम से और स्मॉल एम से बड़ी, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट m and capital M such that m is less than equal to a n is less than equal to capital M for all n belonging to m, तो हम इसको कहेंगे बाउंडेड, ऊपर से भी बाउंड होना चाहिए और नीचे से भी, then that is said to be bounded. Next is monotone sequence. मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है? अच्छा, किसी चीज को इंक्रीजिंग कम बोलते हैं हम जब वो बढ़ता रहता है, यस और नो? यस मैम। अब ये सीक्वेंस देखो n स्क्वायर, तो ये सीक्वेंस के टर्म्स लिखोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, आप क्या देखोगे हर एक टर्म जो उससे पहले वाली टर्म है उससे क्या है, बड़ी है। तो इफ an इज लेस देन इक्वल टू an प्लस 1, जो नेक्स्ट टर्म होगी वो प्रीवियस टर्म की या तो इक्वल है या उससे छोटी है, देन हम सीक्वेंस को क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या तो उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो नेक्स्ट टर्म। सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होगा, जो नेक्स्ट टर्म है an प्लस 1 वो पहले वाली टर्म से छोटी हो, जैसे हमारा सीक्वेंस 1/n के लिए है 1, 1/2, 1/3, कोई भी टर्म लोगे वो उसकी पहले वाली टर्म से क्या है, छोटी है। हाफ क्या है हमारी, 1 से छोटी है। दिस इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और एक रिजल्ट है, कोई भी एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्ज। इसका रिजल्ट आपको नहीं, मतलब प्रूफ नहीं करना है, जस्ट आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्ज। अभी तक जो एक्सप्लेन किया है वो सबको क्लियर है? मैम Yes. इन्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी तो बोल सकते हैं, मतलब मोनोटोनिक बोलने से क्या होता है? मोनोटोनिक वर्ड का मतलब होता है, मोनोटोन का मतलब होता है या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंक्रीजिंग की डेफिनेशन के लिए और डिक्रीजिंग। मोनोटोन वर्ड का मतलब ही होता है, ठीक है, या तो वो Okay, ma'am. इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा, उसमें दोनों आ गए, ठीक है। मोनोटोन वर्ड कॉम्प्रोमाइज टू बोथ, मतलब एक पैटर्न होना चाहिए, तो बढ़ती होंगी टर्म्स या फिर डिक्रीज हो रही होंगी टर्म्स। मैं अपनी ये वाली क्लास एंड कर रही हूँ, एक और लिंक शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको करके आप रीज्वाइन करना, ओके मैम हम्म। मैम वो an इज इक्वल टू -1 की पावर n वाला एक और बार बता दो थोड़ा बहुत। आप अपने उस सीक्वेंस के लिए टर्म की थी सीक्वेंस की। यस मैम, वो ऑसिलेटिंग थी ना मैम, -1 से 1 जा रही थी। देखो, कोई भी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, कि कोई एक नंबर हो उसके क्लोज हमारी ज्यादातर टर्म्स हो सीक्वेंस की, मतलब कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स उस पॉइंट के आसपास क्लस्टर कर रही है, ठीक है। अब आप जब देखोगे -1 की पावर n के लिए, तो आप देख रहे हो कि जब आप कोई भी n की ऑड वैल्यू ले रहे हो तो आपको सीक्वेंस की वैल्यू क्या मिल रही है, -1। अगर इवन वैल्यू ले रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1, है ना। तो आप जब आपका जो सीक्वेंस है उसमें जो सबस्क्रिप्ट है स्मॉल n, वो आपका नेचुरल नंबर होगा। कोई भी नेचुरल नंबर या तो इवन होता है या ऑड होता है, तो आपने क्या देखी सीक्वेंस की वैल्यू इवन नेचुरल नंबर के लिए, इवन वैल्यूज के लिए क्या आ रही है, 1, ऑड के लिए -1। तो आपको ऐसे दो नंबर मिल गए हैं 1 एंड -1, जिसके अराउंड आपका सीक्वेंस क्लस्टर कर रहा है, उसके टर्म्स क्लस्टर कर रही है, मतलब उसके आसपास, यस और नो? यस मैम। तो ये सीक्वेंस कैसा है, जो दो पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, एक 1 को और एक -1 को। कन्वर्जन का मतलब ये है कि ज्यादातर टर्म्स उस नंबर के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो दो नंबर खुल रहे हैं, तो मैं इस सीक्वेंस की कोई एक लिमिट नहीं निकाल पा रही हूँ, एक नंबर नहीं है जिसके पास वो क्लस्टर कर रहा है, यहाँ पे दो नंबर हैं, तो इस सीक्वेंस को हम कन्वर्जन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस। जो टर्म्स है सीक्वेंस की वो 1 और -1 के बीच में ऑस्किलेट कर रही है। तो मैम इसकी दो लिमिट अब समझ होंगी? आया? हाँ, इस सीक्वेंस की दो लिमिट है ना। अगर n इवन है तो लिमिट क्या बन रही है, 1 बन रही है। अगर ऑड है तो लिमिट क्या बन रही है सीक्वेंस की, -1। ओके मैम। अगर मैं सारी इसमें से इवन टर्म्स उठा लूं, इस सीक्वेंस में से सारी इवन टर्म्स, तो उनकी लिमिट तो 1 मिल रही है ना। अगर सबकी ऑड उठा रही हूँ तो -1 मिल रही है। तो इस सीक्वेंस की कोई यूनिक लिमिट नहीं है,
मतलब अगर पूछा जाए कि सीक्वेंस की क्या लिमिट है, वो आप नो लिखोगे, क्योंकि इसकी 2 वैल्यूज को जा रहा है। लिमिट का मतलब होता है कि एक वैल्यू को मिलना चाहिए कोई, ठीक है। यस मैम, यस मैम। मैं भी लिंक शेयर कर रही हूँ, उसको यूज करके रीज्वाइन करना। ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फर्स्ट यूनिट में जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें सबसे डिफिकल्ट यही टॉपिक है, इनफाइनाइट सीरीज, और डेफिनेटली इस टॉपिक में से क्वेश्चन होगा एग्जाम। नाउ कंसीडर द सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। मैंने आपको बताया था सीक्वेंस क्या होता है, अब मैं आपको बता रही हूँ सीरीज क्या होता है।
अब ये वाली जो सीक्वेंस है आपके पास A1, A2, A3, इसको यूज करके आप एक नया सीक्वेंस डिफाइन कीजिए, कैपिटल S1, S2, S3 एंड सो ऑन, वेयर S1 इज इक्वल टू A1। जो आपका गिवन सीक्वेंस था उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, आपका S1 के बराबर है। S2 क्या है, A1 प्लस A2, दैट मीन्स जो फर्स्ट टू टर्म्स की सीक्वेंस थी उनका सम लिया है। थर्ड टर्म क्या है हमारी S3, पहली थ्री टर्म फर्स्ट टू टर्म्स का सम। तो सिमिलरली जो nth टर्म होगा Sn, वो क्या होगा, an वाले सीक्वेंस की फर्स्ट n टर्म्स का सम, A1, A2, A3 अप टू an, which is equal to summation of ai I from 1 to n। समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. This Sn is called nth partial sum and is sum of first n terms of the sequence। अब जो इस सीक्वेंस से जो सीरीज होगी वो क्या होगी, ये जितनी भी टर्म्स हैं सीक्वेंस में उन सबको हम सम कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक सीरीज A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन, which is equal to summation of ai I from 1 to infinity in closed form। In closed form the series is written as summation of ai I from 1 to infinity। सीरीज जब भी आपको आइडेंटिफाई करने की सीक्वेंस है, सीरीज है, सीरीज में हमेशा प्लस साइन होगा टर्म्स के बीच। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट टर्म्स है जिसका हम सम ले रहे हैं, तो ये कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज। अब क्वेश्चन क्या है, जो भी हमारी सीरीज है, अब ये हम क्या कर रहे हैं, सब टर्म्स को सम कर रहे हैं। तो कभी भी किसी को हम सम करते हैं किसी भी नंबर को, तो हमें एक रिजल्टेंट मिलता है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब हम इस सीरीज जो हमें गिवन है, इन सारी टर्म्स को जब हम सम करेंगे, तो जो इनका सम होगा वो एक फाइनाइट नंबर होगा या इनफाइनाइट नंबर होगा। अगर फाइनाइट है तो वो कन्वर्ज करिए, अगर इनफाइनाइट है तो वो डाइवर्ज करती है। अब इतनी सारी टर्म्स का सम निकालना तो डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम Sn लेते हैं, n टर्म्स तक का सम लेते हैं, जिसको हम कहते हैं nth पार्शियल सम, और फिर उसकी लिमिट कंप्यूट करते हैं Sn टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट ऑफ Sn n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और s के इक्वल है, मान लो कि लिमिट s के इक्वल है, देन हम कहते हैं सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है और उसका सम क्या है, कैपिटल S। अदरवाइज द सीरीज इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है, और सीरीज कब कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, वो सबको समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. अगर ये जो s की वैल्यू है, ये लिमिट अगर वो यूनिक नहीं है, तो हम कहते हैं सीरीज क्या है, ऑस्किलेटरी है। जैसे कि मैंने an वाले सीक्वेंस के लिए बताया था, तो अगर ये जो Sn सीक्वेंस मिलेगा यहाँ पे n टर्म्स को सम करके जो सीक्वेंस मिल रहा है, वो अगर उसकी लिमिट यूनिक नहीं है, तो सीरीज क्या है, ऑस्किलेटरी। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपने ये सीरीज ली है an, जो nth टर्म है सीरीज की वो क्या है, n स्क्वायर। देखो अगर सीक्वेंस लोगे तो वो क्या होगा, an इज इक्वल टू n स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, उन सबको हमने सम कर दिया तो हमें एक सीरीज मिलता है। अब हमें पता करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेंगे। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसे मिलेगा, इसकी n टर्म्स को सम करके। अगर n टर्म्स लिखूंगी मैं सीक्वेंस, तो उनको सम कर लो, तो पहले हम Sn फाइंड आउट करेंगे। तो Sn क्या होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, इसकी nth टर्म क्या होगी सीक्वेंस की, n स्क्वायर, उन सबका सम। फॉर्मूले से आपको पता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं। अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लूंगी, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में तो एक कांस्टेंट है, सब कुछ क्या है न्यूमरेटर में है, n पे डिपेंड करती है वैल्यू। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है। इसका मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी, ये जो वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, वो भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, मतलब फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब गिवन सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, मैम। ma'am. Yes. यस नेक्स्ट देखो, अब आप सीक्वेंस लीजिए 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3। ये जो पैटर्न है 4 माइनस 3 माइनस 1, ये रिपीट हो रहा है।
अगर आप इसकी पहले हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालना चाहते हैं Sn, पहले हम S1 निकाल रहे हैं। S1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म तक का सम विच इज 4। S2 क्या होगा, पहली दो टर्म्स का सम 4 माइनस 3 विच इज 1। S3 क्या होगा, 3 टर्म्स का सम 4 माइनस 3 माइनस 1 विच इज 0। 4 निकालोगे वो आपका 4 आएगा, 5 निकालोगे फिर S5 निकालोगे 1 एंड सो ऑन। आप देखोगे ये 4 1 0 4 1 0 रिपीट होगा। तो यू कैन राइट Sn एज Sn की वैल्यू 4 होगी अगर n क्या हो आपका 3k प्लस 1 की फॉर्म का होगा। देखो 3 इंटू 0 प्लस 1 1, 3 इंटू 1 प्लस 1 4। अगर 3k प्लस 1 की फॉर्म का है n तो Sn आपका 4 है। अगर n आपका 3k प्लस 2 की फॉर्म का है तो Sn की वैल्यू 1 आ रही थी। अगर आपका 3k की फॉर्म का है तो वो 0 आ रही थी। तो आपने देखा यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो 4 नंबर के उसकी वैल्यूज है 4 नंबर के आसपास है, 4 1 एंड 0। जैसे मैंने -1 रेज़ टू द पावर n के लिए बताया था, वैसे ही देखो इस सीक्वेंस के लिए क्या बन रहा है 4 1 एंड 0। तो 3 नंबर तक जिसके आसपास Sn की टर्म्स होंगी। तो कैसे इसकी लिमिट यूनिक नहीं है, तो Sn कैसा है, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है। तो इसका मतलब आपकी सीरीज कैसी है, ऑस्किलेटरी है। It is clear that Sn does not tend to a unique limit as n tends to infinity. Therefore, limit of Sn is not unique and hence your series is oscillate. ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. आज के लिए बस इतना ही. Just go through the notes. Next class में we will start with geometry series. And one more thing, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो स्टार्टिंग से इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना ताकि आपको बाद में डाउट नहीं हो कोई इस टॉपिक में. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. डाउट किसी को? मैम आप ये पीडीएफ शेयर कर दोगे ना? हाँ मैं कर दूंगी. मैम मेरे को इससे पहले वाला जो इनफिनिट सीरीज से पहले वाला था उसमें थोड़ा सा पूछना था, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं. एक अगर कोई माइनर सा डाउट है मैं आपको अभी बता देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज बाद में पूछना. बताओ क्या डाउट है? मैम मोनोटोन सीरीज नहीं था, मोनोटोन मोनोटोन से पहले नहीं मैम, बाउंडेड जो सीक्वेंस है ना उसके लिए पूछना था, एक बार वो बता दो बस. मैम हम छोड़ सकते हैं क्लास? या यू कैन लीव. बाउंडेड का मतलब क्या है कि आपको जो टर्म्स है सीक्वेंस की, अगर हम बाउंडेड अबव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स, सारी टर्म्स किसी एक नंबर से, एक फिक्स नंबर से कम है, एक कांस्टेंट से कम है. सपोज करो आपका सीक्वेंस है 1/n, तो अगर आप इसके टर्म्स लिखोगे 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन, आप देखो इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स 1 से छोटी है या उसके बराबर है. yes or no? You can write an is less than equal to 1. अगर n को आप 1 लिखो for the sequence 1/n. So in that case we say that the sequence an is bounded above. कोई एक ऐसा नंबर जिससे आपकी सीक्वेंस की टर्म्स सारी छोटी हैं या उसके बराबर है, उस नंबर को क्या बोलेंगे, उसका अपर बाउंड, और सीक्वेंस को बोलेंगे बाउंडेड अबव. ओके मैम. अब मान लो अगर आपने सीक्वेंस लिया n², तो इसकी टर्म्स क्या होंगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. आप देखोगे इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है. ऐसा कोई नंबर होगा जिससे सारी टर्म सीक्वेंस की छोटी हो, कोई भी नंबर नहीं होगा, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है. बाउंडेड बिलो के लिए क्या होना चाहिए, सारी टर्म सीक्वेंस की या किसी नंबर से बड़ी हो या उसके बराबर हो. जैसे 1/n के लिए आपका लोअर बाउंड हो जाएगा -1. जितनी भी टर्म्स होंगी 1/n सीक्वेंस की वो क्या होंगी, -1 से बड़ी होंगी. तो क्या होगा, हमारा वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है एंड -1 कैन बी साइड टू द लोअर बाउंड. और जरूरी नहीं कि हर सीक्वेंस का एक ही लोअर बाउंड होगा, कई सारे हो सकते हैं. और बाउंडेड कब कहेंगे किसी सीक्वेंस को, जब वो दोनों हो, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो. ठीक है. इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम. या थैंक यू. Okay, I'm ending the class.